Hello everyone. Hello my dear students. I am Jyoti Sharma from Army Institute of Education. Today we will discuss an important as well as a very interesting topic that always occur in your real life. You will relate it with your real life, reflection and reflection. Okay, reflection and reflection. Now come to the reflection and refraction. What are those? Why we are studying it? Firstly, these are the fundamental concepts of optics. Now you will say, what is optics? We have not read about optics, nothing but just an optics. Optics is nothing but it is a study of light. Study of light. How light behave in different medium, how light behave, what is the nature of the light. These all come in our optics. Okay, optics just a study of the light. Here you can see phenomena that describe how light interacts with different surfaces and different mediums. So different surface और different medium पे कैसे light हमारा behave कर रही है, these all come in a optics, and two main important processes are reflection and the refraction. Here you are seeing this is the surface, these are the different mediums. The light is behaving differently. In this medium it is behaving different, in this they are behaving different, this is bouncing, this is, we will read about it, but it's a just brief about the reflection and refraction, what we will read about it in next. Okay, now come to the reflection. First important topic of our optics is reflection. What is this? It is a just bouncing back of your light. When the light hit a surface and it bounced back, this is a reflection. Okay, so here you are seeing, I have made this diagram for you. So this is the surface. Okay, this is the surface, and when we incident or when we hit a light, हमने यहाँ पे क्या किया, लाइट को हिट किया है and then it bounces back. Okay, this is the reflection. But in our topic we will not read about reflection कि बस हमें इतना ही करना है कि रिफ्लेक्शन इज जस्ट अ बाउंसिंग बैक. नो, बट वी विल रीड अ साइंटिफिक इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट इंक्लूडेड इन अ रिफ्लेक्शन. लाइक फर्स्ट इज इंसिडेंट रे. बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इंसिडेंट रे, द रे विच इंसिडेंट, जो हमारी लाइट पड़ रही है सरफेस में, दैट इज इंसिडेंट रे, एंड विच इज बाउंसिंग बैक, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव रे. तो हम क्या लिखेंगे, ये बाउंस जो हो रही है हमारी. Okay, now come to the normal, which is very important of your topic reflection. Normal is nothing but it is a hypothetical. हम guess करके बोल रहे हैं, हमने बस मान लिया है एक कि जो परपेंडिकुलर है, क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है सरफेस के. इफ हम लेट करते हैं ये सरफेस है और जो परपेंडिकुलर एक लाइन जा रही है उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल. ओके, समझ में आया? ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. हम ये आगे पढ़ेंगे. यहाँ देखिए पहले आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. अब रिफ्लेक्शन होने के लिए भी बच्चों लॉज हैं हमारे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे. आपके जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, उसमें ये नहीं आएगा सिंपल कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन. नो, they will ask about the laws of reflection. तो what is laws of reflection? तो फर्स्ट हमारा बोलता है कि बच्चों जो हमारा इंसिडेंट एंगल है, क्या है हमारा इंसिडेंट एंगल. अब दोबारा याद करो, इंसिडेंट रे क्या थी, अब वहीं से ही हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल पढ़ेंगे. तो देखो बच्चों, ये क्या था, हमारी इंसिडेंट रे थी, और ये थी हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या था हमारा नॉर्मल. यही तीन चीज पढ़ी है हमने. अब देखो, जो हमारी इंसिडेंट रे पड़ रही है, द रे विच मेकिंग एन एंगल विद अ नॉर्मल. सी, इंसिडेंट रे इज मेकिंग एन एंगल विद नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल. इंसिडेंट एंगल. ओके, नाउ द रिफ्रैक्टिव एंगल. What is refractive angle? The refractive ray making an angle with normal, which is reflected angle. Okay, समझ में आया रिफ्लेक्टिव एंगल और इंसिडेंट एंगल क्या होते हैं. तो बस यही है हमारा कि लॉ में हमारा बोला जा रहा है कि जो रिफ्लेक्टिव एंगल है और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल दोनों हमारे क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे. समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है.
बहुत ज्यादा। अब देखो मैं आपको दिखाती हूँ, यही चीज मैं लॉ आपको इसमें परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि क्या है हमारा, कि रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है हमारा, और हमारा इंसिडेंट एंगल कैसे हमारे अलग हो रहे हैं। ये देखो, देखो बच्चों, ये और आप तो देखो बच्चों, ये हमारी लाइट है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, मतलब ये हमारा सरफेस है और ये हमारी लाइट है। तो देखो क्या हो रहा है, मैंने जस्ट इस पे इंसिडेंट करवा रही हूँ, मैं तो बच्चों यहाँ पे मार रही हूँ, लेकिन ये यहाँ पे क्यों शो कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही तो रिफ्लेक्शन है बच्चों, कि मैंने यहाँ पे इंसिडेंट किया, लाइट हमारी बाउंस बैक हुई और इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इमेज बन रही है, हमारा रिफ्लेक्शन शो हो रहा है हमारा। तो दिस होल प्रोसेस इज रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट incidenting on a surface, it bouncing back and making a reflection। अब देखो ये चीज तो आपने पढ़ ली, व्हाट इज रिफ्लेक्शन। अब हम बात करेंगे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल। हम बार बार कह रहे हैं ना कि दोनों इक्वल होंगे। देखो अब मैं जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट या फिर लाइट को जैसे जैसे मूव करती जाऊंगी ना, ये अपने आप ही क्या होगा बच्चों, मूव होता चला जाएगा। देखो आप देख रहे हो, मैंने सरफेस बच्चों वहीं पे रख रखा है, सरफेस वहीं पे रख रखा है, लेकिन लाइट जो है बच्चों मैं उसको मूव करवा रही हूँ और अपने आप ही एंगल चेंज हो रहा है। देखो मूवमेंट देख रहे हो आप, अभी यहाँ पे है लाइट, यहाँ पड़ रही है, रिफ्लेक्शन यहाँ पे बन रहा है। अब देखो लाइट जैसे जैसे चेंज की मैंने, अब देखो लाइट यहाँ पे आ गई और यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है। उतना ही जितना हम एंगल, इंसिडेंट एंगल को शिफ्ट कर रहे हैं, उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी हमारा बच्चों शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये तो था हमारा रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे बच्चों रिफ्रैक्शन। एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन बच्चों। तो देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो गया हमारा बाउंसिंग बैक, एंड द रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बच्चों ये कुछ की टर्म्स हैं दैट अगर हम मीडियम चेंज करते हैं, पानी से हवा में जा रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं हम, वाटर से एयर में जा रहे हैं, एयर से वाटर में जा रहे हैं, या फिर ग्लास से वाटर में जा रहे हैं, वाटर से ग्लास में जा रहे हैं। एज द मीडियम चेंजेस द लाइट, ओके, द लाइट बेंड इटसेल्फ। तो क्या ये किसकी वजह से होता है बच्चों, क्या होता है कि जैसे ही हमारी मीडियम चेंज होता है, उसकी जो लाइट की जो स्पीड होती है बच्चों, जो वो क्या होती है हमारी, चेंज होती चली जाती है। एज द मीडियम चेंजेस द स्पीड ऑफ लाइट रे बिकम चेंजेस, एंड द जो हमारी लाइट होगी वो क्या होती चली जाती है, हमारी बेंड होती चली जाती है। तो दिस चेंज इन स्पीड कॉजेज द लाइट चेंज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर हमारा क्या हो जाता है बच्चों, बेंडिंग हो जाती है। तो यही हमारा रिफ्रैक्शन होता है। दोनों टर्म याद रखने हैं, बाउंसिंग बैक एंड द बेंडिंग। ना हमने उसमें लॉ पढ़े थे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल, ओके। ऐसे ही इसमें है बच्चों स्नेल लॉ हमारा क्या दिखाता है बच्चों, कि जब हम इंसिडेंस कर रहे हैं किसी लाइट को और ये हमारा क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रही है हमारी, तो हियर इसमें भी हमें एक वही चीज सेम आ जाएगी बच्चों, दिस विल बी द इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंड इट विल बी द रिफ्लेक्टिव एंगल। क्या होगा ये हमारा, रिफ्लेक्टेड एंगल, ओके। तो इसमें भी हमारा एक नॉर्मल है, ये हाइपोथेसिस है। When the incident ray making an angle with a normal, it is a incident angle, and the refracted ray making an angle with a normal, it is the refracted angle। तो यही हमारा क्या होता है बच्चों, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में हमारे क्या बताया, अब यहाँ पे दो टर्म आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये हो गया हमारा इंडेक्स रेशियो, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इंडेक्स रेशियो। टेंशन की बात बिल्कुल भी नहीं है, कोई इतना हार्ड नहीं है कि इंसिडेंट एंगल, सॉरी इंडेक्स एंगल क्या है, इंडेक्स रेशियो क्या है, कोई इतनी हार्ड वाली बात नहीं है। देखो ये क्या होता है, जैसे जैसे हमारी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है ना मीडियम से, यही हमारा क्या होता है बच्चों, इंडेक्स रेशियो होता है। इंडेक्स अगर हम किसी भी रिफ्लेक्शन का निकालना है, हम क्या करेंगे, जस्ट रेशियो निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा हमारा, स्पीड ऑफ लाइट। तो आप इसको नॉर्मल लिख सकते हो, हम आई से इसको शो करेंगे। देखो आई रेशियो हमारा किसका बच्चों, रेशियो ऑफ किसका होगा, हम अगर हम रेशियो अगर हम निकाल रहे हैं इसका, तो नॉर्मल क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो कि आप मेरे से बेहतर जानते हो क्या होता है, 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ किसका होगा बच्चों, उसी स्पीड किसमें हमारी, मीडियम में, स्पीड इन अ मीडियम। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो यही हमारा इंडेक्स रेशियो होता है, बस बहुत
है, इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है हमारा इसमें। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। तो ये हमारी स्नेल्स लॉ है। तो सीधे आएगा, ये बोलेंगे नहीं कि रिफ्रैक्शन का वो बताओ, वो सीधा बोलेंगे कि हाउ विल यू डिफाइन स्नेल्स लॉ। तो हम आप नॉर्मली आप क्या लिखोगे इसमें, n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2. Here θ1 is a incident angle and θ2 is a refracted angle. n1 is the index ratio of this medium and n2 is the refraction of index of refraction of this medium. ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन है। अब आप कह रहे हो मैम ने बोल तो दिया रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, लेकिन अब दिखाओ तो सही कि रिफ्रैक्शन हम कैसे देखें कि बेंडिंग कैसे हो रही है लाइट की। कुछ भी नहीं बच्चों, देखो है कुछ भी नहीं। ये देखो आप, ये है, मैंने नॉर्मल एक ग्लास लिया है, ये एक पैन है और ये हमारा क्या है, एयर। अब देखो यहाँ पे दो मीडियम है। पहला क्या है हमारे, ये ऊपर का मीडियम है एयर, विच इज अ एयर मीडियम, और ये जो हम पानी ले रहे हैं ये क्या है हमारा डेंसर मीडियम। बच्चों इसके लिए हमारे एक और चीज याद रखनी है, दो चीज बोला जाएगा बार बार दो चीज बोलेंगे। एक तो होगा हमारा बच्चों डेंसर मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, और एक होगा बच्चों रेयरर मीडियम जिसकी हमारी डेंसिटी कम होगी। तो आप ही बताओगे एयर विल बी अ डेंसर मीडियम और अ रेयरर मीडियम इन कंपेयरिंग टू वाटर। रेयरर मीडियम, क्योंकि बच्चों वाटर की डेंसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू एयर। नाउ कम टू द टॉपिक रिफ्रैक्शन क्या होता है हमारा। अब देखो बच्चों, लाइट है हमारी, लाइट तो सनलाइट तो है ही हमारी सराउंडिंग में। अब मैंने क्या किया बच्चों, इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब देखो जैसे ही बच्चों आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको पेन जो है वो मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, बेंडिंग दिखाई दे रही होगी। यही बेंडिंग बच्चों क्या है, जैसे ही ये एयर से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आया, द लाइट बेंडेड बिकॉज ऑफ स्पीड चेंजिंग ऑफ लाइट। जैसे ही स्पीड चेंज हुई, एयर में थी, एयर में जैसे ही डेंसर में जा रहा है, इट बिकमिंग बेंडिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग ऑफ स्पीड। ठीक है, तो बच्चों ये तो हुआ हमारा रिफ्रैक्शन, समझ में आया। अब रिफ्रैक्शन के बच्चों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है बच्चों लाइट डिस्पर्जन। एज यू ऑलवेज सी आफ्टर अ रेनी डे, आप बहुत मजा करते हो रेनी डे, फिर उसके बाद आप देखते हो क्या बच्चों, रेनबो। व्हाट यू सी, रेनबो बच्चों किसका पार्ट है बच्चों, डिस्पर्जन का। जस्ट इट इज नथिंग बट इट इज अ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होता है ना, व्हेन लाइट जो होती है हमारी, जो सन रेज होती है, व्हाइट लाइट होती है, डिस्पोज इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल कलर दैट इज दिस। तो जैसे ही हमारा लाइट जो है वो डिस्पोज होती है, हमारी टूट जाती है इन 7 ब्यूटीफुल कलर्स में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्जन। ओके, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। हम देखेंगे इसमें, पहले आप ये देखते हैं, हम पहले इसकी थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या है बच्चों। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट अगर्स व्हेन लाइट वेव्स आर सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, क्योंकि हमें पता है ना व्हाइट लाइट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो वही 7 कलर जिससे मिलके बनी हुई होती है वो लाइट, वो उसी में ही क्या हो जाती है बच्चों, टूट जाती है। दिस फिनोमेना हैपन जब हम प्रिज्म होता है ना, दिखाऊंगी आपको प्रिज्म, देखो प्रिज्म, ये होता है बच्चों प्रिज्म। तो क्या होता है, जैसे ही लाइट जो होती है ना प्रिज्म से निकल के जाती है ना, तो क्या करती है, ब्यूटीफुल कलर। वैसे ऐसे होता नहीं है, इतने अच्छी तरह से दिखाई देते नहीं है, असलियत में देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे से छोटा सा ही दिखाई देगा ये हमारा। तो बच्चों एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, वो है बच्चों लाइट डिस्पर्जन। एज यू ऑलवेज सी आफ्टर अ रेनी डे, आप बहुत मजा करते हो रेनी डे, फिर उसके बाद आप देखते हो क्या बच्चों, रेनबो। व्हाट यू सी, रेनबो बच्चों किसका पार्ट है बच्चों, डिस्पर्जन का। जस्ट इट इज नथिंग बट इट इज अ रिफ्रैक्शन। जब रिफ्रैक्शन होता है ना, व्हेन लाइट जो होती है हमारी, जो सन रेज होती है, व्हाइट लाइट होती है, डिस्पोज इनटू अ वेरी ब्यूटीफुल कलर दैट इज दिस। तो जैसे ही हमारा लाइट जो है वो डिस्पोज होती है, हमारी टूट जाती है इन 7 ब्यूटीफुल कलर्स में, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्जन। ओके, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। हम देखेंगे इसमें, पहले आप ये देखते हैं, हम पहले इसकी थ्योरी पार्ट देखते हैं क्या है बच्चों। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट अगर्स व्हेन लाइट वेव्स आर सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट, क्योंकि हमें पता है ना व्हाइट लाइट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। तो वही 7 कलर जिससे मिलके बनी हुई होती है वो लाइट, वो उसी में ही क्या हो जाती है बच्चों, टूट जाती है। दिस फिनोमेना हैपन जब हम प्रिज्म होता है ना,
मैं दिखाऊंगी आपको प्रिज्म। देखो प्रिज्म ये होता है बच्चों प्रिज्म। तो क्या होता है, जैसे ही लाइट जो होती है ना प्रिज्म से निकल के जाती है ना, तो क्या करती है, ब्यूटीफुल कलर। वैसे ऐसे होता नहीं है, इतने अच्छी तरह से दिखाई देते नहीं है, असलियत में देखेंगे तो बहुत धीरे धीरे से छोटा सा ही दिखाई देगा ये हमारा। तो क्या होता है, जब प्रिज्म में व्हेन हम लाइट को हिट करवाते हैं तो इट कॉन्स्टिट्यूट और इट ब्रेक इनटू अ 7 ब्यूटीफुल कलर। सो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो हम बात बोलेंगे, ये जो डिस्पर्जन है, ये जो कलर देख रहे हैं ना, जो कॉम्बिनेशन है जो हमारे कलर्स का, इसको हम बोलते हैं बच्चों स्पेक्ट्रम। तो बार बार यू हैव टू रिमेम्बर कि इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर। तो ये जो हमारा टूट रहा है ना, इसको हम बोल रहे हैं बच्चों स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहे हैं इसको, स्पेक्ट्रम। ओके, तो देखो यहाँ पे मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि कैसे ये आप भी एक्साइटेड होंगे कि प्रिज्म जो है हमारा कैसे करके अपने ब्यूटीफुल जो 7 कलर्स हैं, स्पेक्ट्रम जो है उसमें कैसे करके टूट रहा है। तो देखो यहाँ पे आप देखना है यहाँ पे बच्चों कि मैंने ये लाइट है और ये हमारे प्रिज्म है। बहुत ध्यान से देखना, आप इसमें हल्का सा दिखाई देगा। तो मैंने इसमें हिट करवाया, प्रिज्म है, लाइट। अब देखो बच्चों, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो यहाँ पे ये जो कलर्स हैं, ये किसमें, व्हाइट कलर जो है, हमारी जो व्हाइट लाइट है वो हमारी किसमें टूट रही है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में। ये आपको 7 कलर्स आपको अच्छी तरह से दिखाई तो नहीं दे रहे होंगे, लेकिन इसमें ध्यान से देखो, कलर्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ये हमारी स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है बच्चों, डिस्पर्जन। तो ये भी हमारा एक रिफ्रैक्शन का पार्ट है। क्या हो रहा है इसमें कि जैसे ही हमारी लाइट इससे द्वारा पास होके जा रही है हमारी, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा वो उसमें स्पेक्ट्रम में हो रहा है। अब देखो हम थोड़ा सा बस अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बार बार हम रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं, बस हमको बस 2-3 चीज याद रखनी है। की पॉइंट्स आर, फर्स्ट, रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट अ बाउंसिंग बैक। मैंने दिखाया था ना, जैसे हमने बाउंस बैक करवाई तो वही हमारा रिफ्लेक्शन है। एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एंड बेंडिंग ऑफ लाइट। नाउ कम टू द बिहेवियर ऑफ लाइट इन प्रेडिक्टेबल अकॉर्डिंग टू अ सिंपल लॉ। तो लॉज मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, उसमें हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। एंड स्नेल्स लॉ में हमने दिखाया था इंडेक्स रेशियो जो है उसका अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे साइन थीटा 1 से, और वो इक्वल होगा हमारा किसका, साइन थीटा 2 इंटू N2 के। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको याद करना है तो ये पिक्चर्स को याद करना, जब व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स ना, देन जस्ट रिकॉल दीज पिक्चर्स की बाउंसिंग बैक एंड द बेंडिंग ऑफ द लाइट। ओके, तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना खत्म कर लिया। हम आगे एप्लीकेशंस भी देखेंगे इसके, एंड वी विल फर्दर स्टडी अबाउट इट। एंड थैंक यू।